topic. So welcome to my channel, and this is qualified sir, and today we will discuss about the exam of IIT JAM. IIT JAM. Okay, JEST or GATE, PSI and NET, or SET, और as well as CUT PG, PG. तो इन सभी एग्ज़ाम के जो माने फिज़िक्स रिलेटेड एज पर द बेस्ड ऑन द फिज़िक्स सिलेबस इसको कवर करेंगे, फिज़िक्स रिलेटेड. Okay, so before start lecture, I want to say that I already qualified a CUT UG, CUT PG, CUT PG geophysics exam. Okay, and also I did MSc in physics, and after that I decided that I will pursue teaching. Okay, teaching as a okay. So for that kind of scenario, I am going to start the lecture of as per the GATE syllabus, vector calculus. Vector calculus. So before start vector calculus, you should need at least the vectors or scalar. So before start vector calculus, I want to say that what is the scalar quantity? What is scalar? What is scalar or vector? You know, when you studied when in class 10th 12th, you very much familiar that a scalar who has only one thing, that it has only magnitude. Okay, and vector who is not only magnitude but also it will show the direction also. So is a scalar, it has particular point of figure, just like there is no kind of showing any kind of direction, but it has magnitude. But if have both that magnitude and direction, both magnitude and direction, so for definition, we are studied here vector calculus. So definitely I will take vector only. So vector is, it is the physical quantity which used to define magnitude and direction of a vector. It is used to define magnitude as well as direction of a vector. Okay, so let's say this is a vector, a vector. When it will written यहाँ पे जब a vector, यानी इसके जब यहाँ पे जो ये जो चीज़ माने ये तीर चिन्ह, ये जो चीज़ है ये क्या करती है, ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है, ओके, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है. और ये है इसका थिंग, और इसका मैग्नीट्यूड भी है और इसका डायरेक्शन भी है. तो ये होता है वेक्टर, माने एक वेक्टर का डेफिनेशन. लेकिन जब वेक्टर पढ़ने लगोगे तब जितनी ज़्यादा इसको डीपली एनालिसिस करने के लिए अंदर घुसोगे, जैसे कि कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे मैं डिस्कस कर लेता हूँ जो बहुत बेसिक है. ठीक है, जैसे कि ए वेक्टर
plus of b vector is equal to b vector plus of a vector, यानी commutative माने law of addition, law of addition. Okay, okay. दूसरी बात, a vector dot b vector is equal to b vector dot a vector. A vector cross of b vector is equal to b vector cross of a vector. These are the things. Okay. Law of multiplication. Okay. Now come to the point. In vector, before start vector, you have to revision 12th level. Okay, after that you jump on the advanced section. Okay, तो बात ऐसा है कि जब कोई वेक्टर का जो माने डायरेक्शन होती है, जैसे कि इस पॉइंट को क्या बोला जाता है, हेड. इस वेक्टर का इस पॉइंट को क्या बोला जाता है, टेल. So one point is telling that it is a head, and another point it is a point of head. So the above side of a vector is always called head, and the other side of a vector is always called a tail. So it is very much clear. Okay, clear. Now first point is now the differentiation of a vector. So first point is equal vector. एक वेक्टर को कब इक्वल बोला जाता है, जैसे कि देखो ये एक वेक्टर है, ठीक है, सॉरी, ये एक वेक्टर है, ए वेक्टर, ठीक है, एंड दिस इज let's see this is a vector a and another vector of b. Okay, so this vector is called a vector and this vector is calling b vector. When we will say this vector is a and b equal, মানে when a vector equal to b vector will सेम. कब हम लोग इस एक वेक्टर को दूसरी वेक्टर से माने समान बोलेंगे, जब भी टू वेक्टर्स इक्वल हो जाएगा. तो इसका डेफिनेशन है वी कॉल ए वेक्टर इक्वल वेक्टर व्हेन इट will become equal of two वेक्टर. जब दोनों वेक्टर का इक्वल हो जाए, ठीक है, तब भी हम लोग किसी वेक्टर को इक्वल वेक्टर बोलेंगे, ठीक है. तो ये है इसका पहला बात. दूसरा बात यह है कि नेगेटिव वेक्टर. कब हम लोग किसी वेक्टर को नेगेटिव वेक्टर बोलेंगे, जैसे कि सबसे पहले अगर तुम किसी एक वेक्टर ले रहे हो, लेट्स से दिस इज ए वेक्टर ऑफ ए वेक्टर and this is also a vector of minus of a vector. Okay, so these vector are called that these are the this vector is the this vector is the difference between a vector and b vector, a negative of b vector, negative of a vector. So let's take another example. Here is a vector,
here is a vector and here is b vector. Okay, so for a vector and for b vector is always a vector is always negative of b vector. Okay, is always negative of b vector. So now the definition is what will be the definition? When a vector and another a vector will be not equal but the direction will be different, then it is called um, mm, negative vector. Okay, जैसे कि a vector is equal to negative of b vector. Clear? Is it clear? Okay, so now come to the point. Next point, very important point, is that unit vector. किसी वेक्टर को कब यूनिट माने वेक्टर बोला जाता है? ठीक है, माने जब भी किसी वेक्टर को माने उसका जो वेक्टर का यूनिट माने तभी कहलाएगा उसका मैग्नीट्यूड अगर 1 आएगा। ठीक है, पहली बात तो ये याद रखना कि अगर किसी माने वेक्टर है, ठीक है, और उसका मैग्नीट्यूड 1 निकल आया माने यूनिट निकल के आ गया, तब भी उसको यूनिट वेक्टर बोलेंगे। सो इफ a vector has its magnitude unit, then it is called a unit vector. जैसे कि I hat, J hat, K hat एग्जाम्पल। सो इसका जो मैग्नीट्यूड है वो अकेला है। ठीक है, और उसके बाद 4 पॉइंट, नल वेक्टर। कब किसी वेक्टर को नल वेक्टर बोला जाता है? देखिए, सबसे पहले जो नल वेक्टर होती है इसका माने इसको कभी कभी शून्य यानी जीरो वेक्टर भी बोला जाता है। ठीक है, माने इसका जो मैग्नीट्यूड है, इफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर बिकम जीरो, देन इट विल बी ए जीरो वेक्टर। ओके, इफ ए magnitude of a vector become 0, then it will be a वेक्टर। माने अगर इसका मैग्नीट्यूड माने 0 निकल के आ गया, तब इस वेक्टर को क्या बोलेंगे? जीरो वेक्टर बोलेंगे। जैसे कि चलो एक एग्जाम्पल दो। जैसे कि ये एक एग्जाम्पल है, ए वेक्टर माइनस ऑफ ए वेक्टर, सो जीरो ऑफ आई है, सॉरी आई है, जे है, ये है। So ultimately this is called as a null vector. This is called a null vector because the magnitude of this vector is what? This vector is 0. So that kind of reason it is called that it is a vector. Okay, of vector মানে sorry, reciprocal vector माने when जब भी किसी वेक्टर का
माने उसका जो माने मैथमेटिकल जो माने उसका जब भी कोई वेक्टर का मैग्नीट्यूड इन्वर्स लिया जाता है तभी उसी वेक्टर को क्या बोला जाता है, रेसिप्रोकल वेक्टर। व्हेन कोई टोक ए वेक्टर इन्वर्सली देन inverse of a vector. Okay, details you will study in mathematical physics. Okay, so let's move on. उसके बाद साइक्लिक वेक्टर, साइक्लिक वेक्टर माने अब साइक्लिक वेक्टर के बारे में इधर देखो, अगर इस हेड और टेल को जोड़ दूं इधर से लेके इधर, ठीक है, टेल पे लेके जोड़ दिया, ये पूरा वेक्टर ए वेक्टर, इस वेक्टर को बोला जाएगा साइक्लिक वेक्टर, साइक्लिक वेक्टर। तो दिस वेक्टर विल टोल्ड दैट इट इज ए साइक्लिक वेक्टर। तो इसका डेफिनेशन क्या होगा, इफ ए वेक्टर join head and tail together, then it will call cyclic of a vector। क्लियर हो गया। जैसे कि माने जब भी हम लोग वेक्टर की माने माने डिटेल से पढ़ने वाले हैं, जब भी वेक्टर को पढ़ने का कोशिश करेंगे यहाँ पे कुछ लॉ आ जाती है, ठीक है, जैसे कि एडिशन, वेक्टर एडिशन, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, ओके, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, उसके साथ स्केलर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, ओके। तो जब वेक्टर की बात हो रहा है तब इसके साथ माने स्केलर भी थोड़ी बहुत आएगा। तो स्केलर के साथ जो चीज़ होती है कि जैसे कि एक स्केलर प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट, ओके, स्केलर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट। तो मैं कुछ चीज़ को यहाँ से माने रिड्यूस करके करके पढ़ा रहा हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा एग्ज़ाम के लिए, एग्ज़ाम की माने माने पर्सपेक्टिव के एज़ पर द सिलेबस। तो जैसे कि सबसे ये लेक्चर बहुत बेसिक है, तो चलो थोड़ी बहुत बेसिक के बारे में समझ लेते हैं। जैसे कि ये एक वेक्टर है, ये वेक्टर का नाम दिया, चलो ये वेक्टर, दिस वेक्टर इज बी वेक्टर and this is called C vector. So here B vector is equal to A vector plus C vector. Okay, so 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 mane A vector and B vector is A vector plus B vector is, sorry, A vector plus C vector is equal to B vector. Okay, B vector. So for a scalar product, for scalar, for a scalar product, what if let's say this is a B vector and this is A vector, and the tail is, this is tail yani angle, okay. uh, what will be the find out the result ultimately mane when we will do a scalar product, what will be come out, what will be the result come out? Now A dot B is equal to what, is equal to AB cos theta. Why cos theta? Now cos theta is basically hypotenuse divided by base, yani A by B is equal to cos theta. So this is the reason cos theta. The angle is the angle whatever theta represent angle, theta representing angle here. Okay, clear?
यहीं तक तो कोई दुख दर्द नहीं है, ठीक है। उसके बाद अगर ऐसा हुआ कि आई वेक्टर डॉट जे वेक्टर और इज इक्वल टू माने व्हाट विल बी द कम आउट इज इक्वल टू बेसिकली डेल्टा ऑफ आई जे, ये क्या मैंने लिख दिया, ये होता है टेंसर, ठीक है। जो माने आई डॉट जे इज इक्वल टू डेल ऑफ कॉन्ट्रावेरिएंट आई जे, ओके। सो दिस इज बेसिकली हियर फ्रॉम हियर you will learn tensor। तो टेंसर बेसिक स्टार्ट फ्रॉम हियर, ओके। जैसे कि टेंसर के बारे में मैंने बात जब आई गया तो मैं एक चीज़ बता रहा हूँ कि टेंसर एक ऐसा क्वांटिटी होती है जिसकी मदद से तुम माने हर एक चीज़ को एक साथ जोड़ सकते हो। जैसे कि मैंने वेक्टर को जोड़ सकते हो, ठीक है, मैट्रिक्स को जोड़ सकते हो, के साथ तुम इंटीग्रल को भी जोड़ सकते हो। तो ये है, तो उसके बारे में हम लोग आगे चल के बहुत अच्छे से समझेंगे और पढ़ेंगे भी, ठीक है। जैसे कि एक बहुत माने एक वेक्टर ले लेते हैं। वेक्टर का सबसे पहले जानना पड़ेगा एक्सिस, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एक 3 डायमेंशन वाला ले लिया, एक्सिस जानना पड़ेगा। इसको बोला जाता है एक्स एक्सिस, सबको पता है, ठीक है। बीएससी एमएससी लेवल तक आ चुके हो तो पता चल ही जाएगा। इसको एक्स एक्सिस बोला जाता है, इसको वाई एक्सिस, इसको जेड एक्सिस, इसको आई हैप इसका डायरेक्शन, इसको जे और इसको के, ये इसका माने मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अगर अगर ऐसा बोल दिया जाएगा कि ये एक वेक्टर है, यहाँ पे ए वेक्टर, तो इसको तुम कैसे रिप्रेजेंट करोगे ए वेक्टर को? तो सबसे पहले ए वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे कि एक्स ऑफ आई जे के प्लस वाई जे प्लस जेड के, सॉरी जेड के। यानी इस वेक्टर का अगर 3 डायमेंशनल में लेना है तब इस वेक्टर को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाएगा। अब यहाँ पे अगर समझ नहीं आया तो देखो, ये ए वेक्टर है, यहाँ पे अगर ज़रा सोचो, अगर ये है इसका x, इसका y और इधर जा रहा है z डायरेक्शन, ओके, z डायरेक्शन। तो इसकी मिडिल से माने इसकी मिडिल एक्स वाई की प्लेन के ऊपर मैंने क्या लिया, ये जो प्लेन है इस प्लेन के ऊपर मैंने एक पॉइंट ले लिया, ए पॉइंट। इस ए पॉइंट का अगर मुझे वेक्टरिकली रिप्रेजेंट करना है तब हम क्या करेंगे, तब हम इसको माने ए वेक्टर की रिप्रेजेंट करने के लिए क्या बोलेंगे कि एक्स डायरेक्शन से इतनी दूरी तक, वाई डायरेक्शन से लेके इतनी दूरी तक, जेड डायरेक्शन से लेके इतनी दूरी तक। जेहेतु ये क्या है, ये वेक्टर है, इसीलिए इसका मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन शो करने के लिए आई जे के एट दिया जा चुका है, ठीक है। समझ में आ रहा है? अगर यहाँ पे एक मैंने बोल दिया पहले ही, यहाँ पे शुरुआत होने से पहले ही मेरा फ्लो में निकल गया था कि अगर ये है, ये जो वेक्टर का माने लॉ है, लॉ ऑफ एडिशन, लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, यानी ये जो लॉ फॉलो कर रहा है ये कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, लॉ ऑफ एडिशन, लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, इसका आगे जाने के बाद बहुत सारा इसका क्या, बहुत सारा काम पे आएगा, ठीक है। तो ये है, अब किसी वेक्टर का प्रोजेक्ट होने का देखेंगे कि प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर। देखिए, प्रोजेक्शन का मतलब है कि किसी वेक्टर का किसी के ऊपर डायरेक्शन देके माने 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 उसको डायरेक्शन शो करने के लिए, माने किसी भी डायरेक्शन उसको शो करने के लिए जो चीज़ लाया जाता है उसको प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बोला जाता है। जैसे कि इधर देखो, इधर एक वेक्टर ले लिया जैसे कि पी वेक्टर, ओके, और इधर एक वेक्टर ले लिया जिसको बोला जाता है एक्स वेक्टर। तो यहाँ पे एक मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे एक लॉम्बो यहाँ पे खींच दिया, टान दिया, ठीक है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे नहीं तो फिर जैसे कि यहाँ पे दे दिया, और इसका एंगल कुछ भी हो, थीटा एंगल, ओके। तो जब इसको माने प्रेजेंट करने जाएंगे इन वेक्टर के अंदर तब क्या होगा, x बाई पी इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो अगर मुझे बेस जानना चाहिए तब क्या होगा, तब होगा कि माने p इज इक्वल टू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई हाइपोटेनियस। अगर इसको मुझे हाइपोटेनियस x के बारे में पता चलना है तब इसको लिखेंगे p कॉस थीटा, ठीक है। और कॉस थीटा क्या होते हैं, हाइपोटेनियस डिवाइडेड बाई बेस इज इक्वल टू कॉस थीटा, ओके।
तो दिस आर द थिंग, अगर यहाँ पे अगर माने अगर इसका इसका अगर माने प्रोजेक्शन जानना है किसी वेक्टर का, तब इसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है मेरी बात समझ में आ रहा है थोड़ी बहुत? जैसे कि चलो यहाँ पे एक क्वेश्चन ले लेते हैं, एक क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे कि अगर धरो ए वेक्टर है, बी वेक्टर है और सी वेक्टर है, ठीक है, तीनों वेक्टर है, उसका अगर एंगल, अगर लेट टेक टेक माने फाइंड करना है, लेट से दैट फाइंड आउट द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ए वेक्टर और बी वेक्टर की माने बिटवीन, इसका मिडिल पर उसका जो माने वेक्टर का जो एंगल होगा उसको फाइंड आउट करने को बोल दिया गया है। तो चलो सबसे पहले एक माने ट्रायंगुलर ड्रॉ कर लेते हैं। इसको नाम दे दिया चलो ए वेक्टर, तो बी वेक्टर और इसको सी वेक्टर। तो इसी एंगल को हम लोग क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले माने यहाँ पे भी बोल दिया गया है, क्या बोल दिया गया है, जैसे कि लेट्स एक माने माने क्या है कि अगर पूरी वेक्टर का यानी ए वेक्टर प्लस ऑफ बी वेक्टर प्लस ऑफ सी वेक्टर इज इक्वल टू 0, so for that kind of reason, let's say uh, mm, let's say a by b is equal to cos theta. Okay, and we know that the angle of every mane um, every mane triangle is basically mane 60 degree. Okay, 60 degree, 60 degree. So what will be the outcome? A by b cos 60 degree मान क्या है, 1/2 हाफ sin cos 60 degree is equal to sin 30 degree. So sin 30 degree is मान 1/2, 1/√2. Okay, okay. जैसे कि लेट से यहाँ पे हम लोग 90 डिग्री लेने वाले हैं कि इसका जो एंगल है वो निकल के आ गया कि एक आलादा त्रिभुज है, इसको निकल के आ गया 90 डिग्री। तो 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 सबसे पहले अगर इसको एंगल 90 डिग्री ले लिया, कॉस 90 डिग्री का वैल्यू क्या है, 1 है। ठीक है, तो 1 है। ठीक है, और और 1 है, सॉरी, cos 90 डिग्री का वैल्यू 0 है। ओके, so a by b is definitely what will be the represent that 0 represent that cos theta is equal to what, 0. So cos theta is equal to 0, 0 represent what, cos 90 degree, 90 degree. So what will be the theta represent, theta represent that it will be 0, 0, sorry, 90 degree, theta represent 90 degree. Okay, so these are the things. तो जब भी स्केलर प्रोडक्ट माने जब भी डॉट प्रोडक्ट की बात आएगा, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसको याद रखना, आई डॉट आई इज इक्वल टू जे डॉट जे इज इक्वल टू के डॉट के इज इक्वल टू व्हाट, आई डॉट आई जे डॉट जे एंड के डॉट के इज इक्वल टू 1. Okay, 1. And when it will be the opposite, यानी
I dot j, j dot k dot I is equal to 0. So this will be the dot product section. For dot product section it will be 0 and it will be 1. Similarly, when we will come to do a cross product, what will be the scene? तो बेसिकली क्रॉस प्रोडक्ट तब भी होता है जब दोनों वेक्टर का माने मिडिल बराबर, यानी उसका जो माने क्रॉस सेक्शन को बारे में बोला जाता है, जैसे कि लेट्स से दिस इज ए वेक्टर, दिस इज ए वेक्टर, दिस इज ए बी वेक्टर, ओके, एंड बिटवीन दिस वेक्टर इज सी वेक्टर, ओके. तो फॉर सी वेक्टर माने द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी डिफाइन, कैसे डिफाइन करा जाता है? द cross product of a vector A and vector B defined as a vector cross of B vector, sorry, in a small letter, a vector cross of B vector is basically AB sin theta. B sin theta. NF represent what? Represent that the direction. Okay. So these are the cross product. Cross product is basically when you will take the cross section of two product, okay, cross section of two vector, then it will be called as a cross, then it will be called as a cross product, okay. So now cross product it is going to end, and the rules begins to जैसे कि I cross I is equal to J cross J is equal to K cross K becomes 0. First rule, always remember that it is very important, okay, very important. दूसरा बात यह है कि माने I cross J is equal to K, J cross K is equal to I, okay. और K cross I is equal to J वेक्टर. ये क्या करेगा? ये है इसका बहुत माने इम्पोर्टेंट माने जो फॉर्मूला है, ठीक है. बहुत सारे इम्पोर्टेंट में से ये बहुत बेसिक चीज़ है. तो बेसिक चीज़ होने के बाद भी इसको बहुत अच्छे से ध्यान से एक बार प्रैक्टिस कर लेना है. उसके बाद एडवांस की टॉपिक की तरफ माने आगे जाना है, ठीक है. जैसे कि अगर दोनों वेक्टर ले लिया, ए वेक्टर इज बेसिकली ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, okay, and another b vector is basically bx I cap by j cap bz k cap, okay. So when you will take a scalar product, what will be the come out, mane sorry, when you will do mane cross product, इसको कैसे लिखा जाता है वो सबसे पहले सोचना चाहिए. जैसे कि एक क्रॉस बी वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे. इसको रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले आई जे और के तीनों ले लिया, ओके. ए एक्स ए वाई ए जेड बी एक्स बी वाई और बी जेड, ये तीनों वेक्टर ले लिया गया है, ठीक है. ए एक्स ए वाई ए जेड बी एक्स बी वाई बी जेड. उसके बाद माने इसका जो कम्यूटेटिव लॉ है, ठीक है सर, माने कम्यूटेटिव लॉ क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर क्या होती है कि ये फॉलो नहीं किया जाता है, ठीक है. माने किसी भी माने क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर इसका, जैसे कि हम लोगों का कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, माने फॉलो नहीं करता है. बिकॉज माने
ए डॉट बी वेक्टर क्या होता है, बी डॉट ए वेक्टर लिखा जाता है, ठीक है, मैंने इसको फॉलो करता है ये डॉट प्रोडक्ट के अंदर। लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर ए क्रॉस बी वेक्टर अगर लिखा गया है तो ये कभी भी ऐसा नहीं होगा कि बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर हो गया, क्योंकि इसका जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगा। तो मैंने सबसे पहले यहाँ पे एक चीज़ लिख दिया था बाई मिस्टेकली कि मैंने ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इसका जो डायरेक्शन है, इसका डायरेक्शन नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है, नेगेटिव डायरेक्शन हो जाएगा। ओके, तब चलो, ये होता है एक वेक्टर का, ठीक है। अगर इसका फिजिकल मीनिंग जानना है कि सर जी कि मास्टर इसका फिजिकल मीनिंग बता दो कि इसका फिजिकल मीनिंग क्या बोला जाता है, तो इसको सबसे पहले मैंने ए वेक्टर क्रॉस ऑफ बी वेक्टर, ये रिप्रेजेंट करता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम। ये किसी पैरेललोग्राम का एरिया समझ माने डिफाइन करने के लिए, बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट करने के लिए इसको यूज़ में लाया जाता है। तो